Good evening, students. So today we'll be discussing the different horizons or the different layers of the soil. Okay, and I have taken this explanation, or you can say this write-up from the book Shankar IS, that is the sixth revised edition. As I had earlier told you that during my preparation I used to study from the book Shankar IS, and not the whole book but few topics from that book. Okay, so this write up I have taken from that book, so you can refer to this book while you are watching this video, or for your revision purposes you can go through your Shankar IS book. Okay, and so our today's topic is the different layers or the different horizons of the soil. So let's start by learning what is soil. Soil is a natural body of mineral and organic constituted differentiated into horizons, usually unconsolidated of variable depths, which differ among themselves as well as from the underlying parent material in morphology, physical makeup, chemical properties and composition, and biological characteristics. Okay, soil. Then comes what is, when we are learning about the different horizons or the different layers of the soil, the most important thing is the soil profile. Okay, what is soil profile? The vertical section of of the soil showing the various layers from the surface to the unaffected parent material is known as the soil profile. मतलब जब आपके पास आपने एक कंटेनर में सॉइल ले रखी है, ठीक है, यू हैव अ टब एंड आपने उसको पूरी मिट्टी से उसको फिल कर दिया। जब आप उसको वर्टिकली काटेंगे, आप जब उसको वर्टिकली काटेंगे तो यू विल सी डिफरेंट लेयर्स इन दैट सॉइल। ठीक है, ऐसी अगर इफ़ यू गो इन अ फॉरेस्ट एंड यू जस्ट आप जब उसमें जाके डिग करेंगे वर्टिकली, व्हेन यू डिग इन इट, यू विल सी डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। वो जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको हम होराइजन्स कहते हैं। और वर्टिकली जब हम सॉइल के अंदर डिग करते हैं तो वो जो हमें पूरा जो पूरा एक फिगर आता है, दैट इज़ नोन एज दी, जो पूरा एक सेक्शन हमें जो दिखता है, दैट इज टर्म्ड एज द सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, द वेरियस लेयर्स आर नोन एज द होराइजन्स. सो देर आर 5 मास्टर होराइजन्स इन दिस सॉइल प्रोफाइल। जो सॉइल का प्रोफाइल होता है उसमें 5 लेयर्स आपको नज़र आएंगी, मेजरली 5 आएंगी। ठीक है, नॉट नॉट all soil profiles contain all 5 horizons, and so soil profiles different from one location to another. मतलब आइडली 5 horizons होते हैं, बट आप जैसे जैसे फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन जाएंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको हर लोकेशन पे 5 horizons ही दिखें। कहीं पे आपको सिर्फ 4 दिखेंगे, कहीं पे ओनली यूल सी 3। ठीक है, सो इट्स नॉट अ नेसेसिटी कि 5 ही होंगे, 5 मेजर हैं। ठीक है, कि 5 आइडली होने चाहिए, बट अलग अलग लोकेशन पे आपको अलग अलग नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम ऑन टू द डिफरेंट होराइजन्स. See, there is O horizon, A horizon, E, B, C and R. Okay, so now let's discuss one by one what is O, A, E and B, C, R. See, आपको ये order इसका learn करना है, ठीक है, which is very important. अगर आपको ऑर्डर लर्न नहीं होगा तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न नहीं हो पाएंगे। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इजी है काफ़ी। OAE BCR, आप इनको टोटल यहाँ पे मैंने 6 लिखे हैं, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, OAE and BCR. ठीक है, the 5 master horizons are represented by the letters OAE and BCR. ठीक है, R भी है। O, the O horizon is a surface horizon that is comprised of organic material at various stages of decomposition. It is most prominent in forested areas where there is accumulation of debris fallen from the trees. See, ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, अगर आप किसी फॉरेस्ट में जा रहे हैं, जो आपको सबसे ऊपर वाली लेयर दिखेगी मिट्टी की, जिस पे बहुत सारे पत्ते वत्ते गिरे रहेंगे, वो क्या होती है हमारी ओ। वहाँ पे क्या हो रहा होता है, वहाँ पे ये सारे डेब्रिस गिरे होते हैं और वहाँ पे अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग डिकम्पोजिशन हो रही होती है। कुछ जो होते हैं वो पूरे तरीके से डिकम्पोज हो चुके होते हैं, कुछ हो रहे होते हैं, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो उसी टाइम गिरे होते हैं। तो वो वाली जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हमारी सॉइल के, दैट इज़ टर्म्ड एज ओ। ठीक है, फिर उसके बाद आती है ए,
The A horizon is a surface horizon that largely consists of minerals that are sand, silt and clay and with appreciable amount of organic matter. इसमें भी organic matter होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा organic matter किस में मिलेगा आपको? O में मिलेगा, ठीक है। ए में आपको ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ में आपको मिनरल्स भी मिलेंगे, सैंडसिल्ट, क्ले भी मिलेगा, ठीक है। दिस होराइजन इज प्रीडोमिनेंटली द सरफेस लेयर ऑफ मेनी सॉइल्स इन ग्रासलैंड्स एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स। एग्रीकल्चरल लैंड्स में जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होती है ना, वो ए वाली होती है, क्योंकि वहाँ पे ओ वाली लेयर नहीं होती है, ठीक है। ओ वाली होराइजन एग्रीकल्चरल लैंड में आपको नहीं मिलेगा। देन ओ ए के बाद क्या है? ई होराइजन। द ई होराइजन इज अ सब सरफेस होराइजन दैट हैज़ बीन हेविली लीज्ड। ओ होराइजन और ए होराइजन से जो भी लीच होके जाएगा वो आएगा आपके ई में जाएगा, ई वाली लेयर में। लीचिंग इज द प्रोसेस इन विच सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट फ्रॉम दिस सॉइल ड्यू टू प्रेसिपिटेशन और इरिगेशन। द होराइजन इज टिपिकली लाइट इन कलर, और इसका जो कलर होगा वो यूजुअली लाइट होगा। इट इज़ जनरली फाउंड बीनीथ द ओ होराइजन। कई लोकेशंस में आपको ए नहीं मिलेगा, आपको ओ के बाद सीधा ई मिलेगा, ठीक है। ओ ई वाली लेयर मिलेगी। देन कम्स बी होराइजन। द बी होराइजन इज अ सब सरफेस होराइजन दैट हैज़ एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द लेयर्स अबव, ठीक है। मतलब इन सब लेयर्स के बाद में जो एक लेयर आएगी वो आएगी आपकी बी। इट इज़ अ साइट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टन मिनरल्स दैट हैव लीच्ड फ्रॉम द लेयर्स अबव। मतलब ऊपर से भी जो मिनरल्स लीच होके आ रहे हैं वो आपके कहाँ पे आ रहे हैं, कौन सी लेयर में आ रहे हैं? आपकी कौन सी लेयर बना रहे हैं? बी होराइजन बना रहे हैं, ठीक है। देन आपका आता है सी होराइजन। द सी होराइजन इज अ सब सरफेस होराइजन। इट इज़ द लीस्ट वेदर्ड होराइजन। मतलब वहाँ पे जो इरोजन हो रही है, वहाँ पे जो वेदरिंग हो रही है वो सबसे कम है। ऑल्सो नोन एज द सैप्रोलाइट। Sea horizon is also known as saprolite. Very important from your exam point of view. It is unconsolidated and loose parent material. ठीक है। पेरेंट मटीरियल मतलब वहाँ की सॉइल उस पेरेंट मटेरियल से ही बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सी वाले में क्या मिलेगा? आपको पेरेंट मटेरियल मिलेगा। और आर क्या होगा? अनवेदर्ड रॉक एग्जिस्ट बिलो दी पेरेंट मटेरियल। और पेरेंट मटेरियल होगा जहाँ पे वेदरिंग हो रही होगी, थोड़ी बहुत होती है, तभी वो सॉइल बनती है। और उस वाली लेयर के नीचे, सी वाले होराइजन के नीचे आपको मिलेगा आर होराइजन। और आर होराइजन में क्या होगा कि एक बड़ा सा ही आपको रॉक मिलेगा। वो क्या किसके नीचे मिलेगा? आपको पेरेंट मटेरियल के। वो बिल्कुल ही अनवेदर्ड होगा, ठीक है। एंड दैट इज नोन एज आर होराइजन, ठीक है। तो कितने होराइजन हो गए हमारे? ओ ए ई बी सी आर, ठीक है। यू हैव टू लर्न द ऑर्डर ऑफ दिस एंड यू ऑल्सो हैव टू लर्न देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। सो दिस इज, and also you have to learn what is soil profile. See, when you dig the soil in a forest area or whatever, तो जो वो vertical section मिलेगा आपको, that is known as soil profile. और उस soil profile के अंदर जो आपको different layers नज़र आएंगे, that is termed as horizons. Please don't confuse yourself. This is a very easy thing. Make your notes and keep revising, and that's all for today's topic, and all the best.